براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارا مددگار اور مستعد مددگار جیسا کہ زبور نویس لکھتا ہے، اور ہمیشہ ہمارے لیے وہ راہیں جہاں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دیواریں ہیں، راہیں بند ہو چکی ہیں، خدا ہماری حکمت اور دانائی جو محدود ہے اپنے فضل سے ہمیں اپنے کلام کی روشنی میں ان بند راہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہ مسائل جن کا حل ہمیں نہیں ملتا، جب ہم اس کے کلام کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں تاریکیوں میں روشنی نظر آتی ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں، وہ انسانی کمیاں اور کمزوریاں اور ادراک، احساس اور عقل کا محدود پن دور ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے ترس اور اس کے کرم کی خاص نشانی ہے۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا میں جو خودکش حملہ ہوا کشمیر میں، اس کی وجہ سے بہت تناؤ ہے، کھنچاؤ ہے، اور لوگ مختلف طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور وجوہات ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ان کو ڈھونڈا جائے، پہچان کی جائے اور سزا تک لایا جائے۔ محرکات کیا ہیں ان پر بات کی جا رہی ہے، تمام پاکستان اور انڈیا کے چینلز اس پر بات کر رہے ہیں کہ حل ڈھونڈا جائے، اور کچھ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہیں اور وہ اپنے جذبات اور احساسات میں ہر وہ بات جو ان کو بات کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے، دونوں اطراف میں وہ سوچنے کی طرف نہیں آ رہے اور اپنے جذبات کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے ایسے دانشمند جو یہ مشورے دیں کہ آگ سے آگ کو بجھاؤ، موت سے موت کو مارو۔ آگ بجھانے کے لیے حکمت اور قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی ضرورت ہے۔ موت کو زندگی میں واپس لانا یہ دانشمندی ہے۔ لڑائی جھگڑوں کو بڑھانا یہ دانشمندی نہیں، بلکہ دانشمندی یہ ہے کہ صلح اور سلامتی کے رویوں کی طرف آیا جائے۔ اور جو دانشور لکھتے ہیں کالم معاف کیجیے گا، انہی دانشمندوں میں سے ایک ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں وسعت اللہ خان صاحب۔ وہ بھی بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور انہوں نے اس تناظر میں جو بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں یہ جو ہم شو کر رہے ہیں اس میں چونکہ موجودہ صورتحال ایسی ہے، اس پر بات کرنا ضروری، تو ہمارا جو موضوع تھا اور ہے اور رہے گا وہ ہے پاکستان میں جو چائنیز لڑکے آتے ہیں یا مرد آتے ہیں اور وہ مسیحی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، اس میں جو جھوٹ، فریب، دھوکہ، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ مثبت پہلو بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو رپورٹس ہیں جو ہم نے دکھائیں بھی اور دکھائیں گے بھی، ایڈوکیٹ صاحبہ کی بات بھی ہم نے کی تھی، تو یہ چونکہ معاشرے کے مسائل ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ ہے، یہ بھی دونوں اطراف کے لوگ اس ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ دونوں اطراف میں بیوہ، یتیم بچے اور بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کو کھو رہے ہیں۔ یہ ایک انسانی المیہ ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس شو میں کچھ حصہ اس پر صرف کیا جائے کہ انسانی حکمت،
इंसानी तदबीरें, इंसानी राय, इंसानी जोश व जज्बा, क्या ये जंगें रोकने में मददगार है या मज़ीद असले की दौड़ बढ़ रही है? और कुछ तारीख़ पर भी झांकेंगे, तारीख़ की खिड़की में से झांक के देखेंगे तारीख़ क्या कहती है। लेकिन पहले मैं वुसअतुल्लाह खान का कालम जो उन्होंने लिखा है, वो इस वक्त जो हमारे नौजवान, वो तबका जो जुल्म का शिकार है, ज़्यादती का शिकार है और उसके बाद वो जो जुल्म और ज़्यादतियाँ करने वाले हैं, इसके ताल्लुक़ से मैं पहले फरमाने कुरान रख दूं, चूँकि मेरे इस शो को बहुत से मेरे मुसलमान बहन भाई और दोस्त अहबाब भी देखते हैं, तो मैं इस तरफ जाने से पहले सिर्फ चंद आयात आपके सामने रखूँगा, फिर कालम की तरफ चलेंगे। चूँकि जहाँ से मदद मिलनी है, अगर वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, जहाँ से हिकमत और दानाई मिल सकती है, जिस तरफ रजू करना चाहिए, आपने तमाम तदबीरें, तमाम हिकमतें, दानिशें इस्तेमाल की और उसका हल आपको मिल नहीं रहा। इस पर बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये मैं आपके सामने अशारिया मज़ामीन किताब का नाम है। यहाँ पर ये मैं एक आयत आपके सामने सूरह अल इनाम की रख रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम अहबाब ज़रा इस पर गौर कर लें। फिर मैं दीगर बातें भी आज करनी है। संजीदा मौजू है, हसास मौजू है, दोनों अतराफ़ में इंसान बसते हैं। तो आइए पहले मैं आपके सामने ये रख दूँ, वो अल्लाह जो तुम्हारी पोशीदा और खुली बातें सब जानता है और जो तुम करते फिरते हो इसका भी उसको इल्म है। अब मैं ज़बूर में से आपके सामने एक आयत रख देता हूँ। खुदा का बंदा दाऊद ये लिखता है कि तू मेरे ख्यालों को जानता है, तू मेरे बिस्तर की छानबीन करता है, तू मेरे इरादों से वाकिफ़ है, यहाँ तक कि ख्याल जब आते हैं तो तू उनसे वाकिफ़ है। अब मसला ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो तुम्हारी पोशीदा जो पोशीदगी में बातें की जाती हैं, और मैं इस पर ज़्यादा, जो लोग समझदार हैं उनको पता है पोशीदा जगह कहाँ पर हैं, तो मैं तो सिर्फ मोहब्बत में बड़े तर्स के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर खुदावंद के फजल से खुदा ताला के कलाम का आईना आपके सामने रख रहा हूँ। जो ये समझते हैं कि वो पोशीदा हैं, खुली बातें सब जानता है, खुदा जो जिसकी ये दुनिया कुंबा है वो सब जानता है और जो तुम करते फिरते हो इसका भी उसको इल्म है। अब यहां पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि खुदा ना जाने कहीं सोया हुआ है। पास्टर प्रवेश साहब हमारे साथ हैं, पास्टर प्रवेश साहब को भी साथ लीजिए। पास्टर प्रवेश साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप, बहुत शुक्रिया, वेलकम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले जी, मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ सर। पतरस इसके बारे में वो लिखता है कि खुदा तहम्मुल करता है। लोग ये समझते हैं कि उनकी पोशीदा बातें हैं, एजेंडे हैं, वो इंसानों को मार दें, कत्ल कर दें, कोई देख नहीं रहा कोई। तो खुदा पतरस के ख़त में कहता है कि खुदा तहम्मुल करता है। अब लोग ये कहते हैं हम खुदा की मर्जी पूरी कर रहे हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पतरस के ख़त से ये पढ़िए कि खुदा की मर्जी क्या है। जब वो तहम्मुल करता है, इंतज़ार करता है, पोशीदगी में देखता है जो इंसान कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप देखिए, फरमाने कुरान आपके सामने रखा, और अब हम बताएंगे कि ये जो आयत है उसको आप किस तरह से समझ सकते हैं कि खुदा तहम्मुल करता है, क्या चाहता है वो। आज पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो कोई भी है, मौत का खेल जारी है। खुदा क्या चाहता है, सुनिए। पास्टर साहब पढ़िएगा हमारे लिए, खुदा तहम्मुल करता है क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता। ज़रा पढ़ दीजिए हमारे लिए और लोग सुन लें कि ये पतरस के ख़त में खुदा का बंदा पतरस लिखता है कि खुदा की क्या ख्वाहिश है। और फिर मैं कॉलम पर भी बात करूंगा। यहाँ पर खुदा के दिल की आवाज़, खुदा के ख्याल, खुदा की वो सिफ्त जो आज इंसानों में जिसका फुकदान है। वो कहते हैं हम पैरवी कर रहे हैं भगवान की, खुदा की,
अल्लाह की कोई भी नाम दे दें आप, ब्रह्मा कह लीजिए, विष्णु कह लीजिए, शिवा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब, खुदा के अजीम बंदे मुसलमान मानते हैं, यहूदी मानते हैं और मसीही मानते हैं कि हमारा खुदा वो है, लेकिन इस खुदा के दिल की ख्वाहिश क्या है? 10 अहकाम में तू खून ना करना वाज़े, और बहुत सी आयत मैं फरमाने कुरान से भी दे सकता हूं, लेकिन यहां पर मैंने ये आपके रखी कि पोशीदा और खुली बातें हैं, लेकिन खुदा के दिल की आवाज़ क्या है? पास्टर प्रोवेस साहब जरा हमारे लिए पढ़ दीजिएगा पतरस के खत से। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। तो यहां पर खुदा की ख्वाहिश क्या है तमाम बनीनो इंसान के लिए पास्टर साहब? जी, खुदा चाहता है, वो किसी की हलाकत से खुश नहीं, तो हलाक होने वाले की लिए उसे खुशी नहीं होती, बल्कि खुदा के दिल की जो ख्वाहिश है वो ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, जिसका मतलब है कि गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करके, तौबा करके वो इस हलाकत से बच जाएं। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रोवेस साहब ने इस बात को वाज़े किया। अब जो अटैक हो रहे हैं उसमें मारने वाले भी इंसान और मरने वाले भी इंसान, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम खुदा के नाम पर ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया आपके सामने खुदा के रूहुल कुद्स की हदायत से, जब खुदा का बंदा पतरस इस बात को कहता है तो पास्टर साहब ने आपके लिए पढ़ दिया, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, किसी की भी। अब यहाँ पर जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है, वसुतुल्लाह खान साहब ने बहुत से मुल्कों के जो नौजवान और वाक़यात थे वो लिखे, जहाँ पर लोग मर भी गए और मारे भी गए। तो वो ये कहते हैं, पास्टर प्रोवेस साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप पतरस दूसरा बाब ज़रा निकाल लीजिएगा और उसमें से मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए पढ़िए। पहले मैं आपके सामने पूरे पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग देख रहे हैं और जो देखेंगे, आपके सामने आज की जो सूरत हाल है उसकी बात कर रहे हैं। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो वसुतुल्लाह खान साहब जब मुख्तलिफ मुल्कों की बात करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि भारत हो कि पाकिस्तान के कश्मीर के अरबस्तान, जब रियासत आम आदमी को कुछ नहीं समझती तो आम आदमी भी कुव्वते बर्दाश्त के खात्मे पर एक पिन निकले दस्ती बम में बदल सकता है और फिर ये बम कोई भी कहीं भी उछाल सकता है। अब रियासत की बात की गई और आम आदमी की बात की गई। जब ज़्यादतियाँ उस पर इतनी ज़्यादा कर दी जाती हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसे बम की मानिद है, कहीं उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। किसके लिए? हलाकत के लिए। लेकिन खुदा की मर्जी, पास्टर प्रोवेस साहब, खुदा की मर्जी क्या है? मर्जी ये है कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। गौर से सुनिए प्यारे नाजरीन, खुदा जो गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक और जेकब, इब्राहिम, इसहाक और याकूब अजीम बंदों के नाम से कहलाता है। तो रेत में लिखा यही मेरा सदा तक नाम रहेगा। वो किसी की पास्टर प्रोवेस साहब यहाँ पर लिखा है किसी की भी बिला इम्तियाज किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि लोग ज्यादतियों में आकर खुद का खात्मा और दूसरों का खात्मा करने वाले बन जाएंगे। आगे लिखा है अब पाकिस्तान भारत या भारत पाकिस्तान पर लाख दांत पीसे, धमकियां दे, मुंह से झाग निकाले या एक दूसरे का सर तोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है? अब ये रवैया जहां पर इंसान मरने और मारने के लिए और फर्क मिट जाए, ये वो रवैया है जहां पर इंसानियत दम तोड़ देती है और हैवानियत और दरिंदगी नमू पाती है और उसका ज़हूर होता है। और फिर हम देखते हैं इंसानों से वो अमाल सरजद हो रहे हैं जिस पर इंसानियत शर्मिंदा है। अब आखिरी बात वो करते हैं कहते हैं डरना चाहिए इन तमाम रियासतों को अपने अमाल से और शुगले महकूम साजी से, लोगों को गुलाम बनाने से डरना चाहिए। ये जो अमाल कर रहे हैं लोग, जिनकी 60% आबादी की उम्र 30 बरस से कम है, ये लड़के लड़कियां तुम्हें
आसमान तक पहुंचा सकते हैं, मगर ज़मीन भी चटवा सकते हैं। अब ये अखबारात में जब नौजवान बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं तो फिर ये वो बात है जो इंसानों को मायूसियों की तरफ, नाउमीदियों की तरफ लेकर जाती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी हस्ती की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अकीदा इस्लाम के मुताबिक ना वो कब्र में हैं और ना ही वो बरज़ख में हैं, वो जिंदा हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम किस तरह उनसे रहनुमाई पा सकते हैं। यशाया की किताब में जब खुदा का बंदा उनका तारुफ करवाता है तो उनके बारे में वो कहता है उसका नाम सलामती का शहजादा होगा, और उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत में कभी तलवार नहीं उठाई और ना ही उन्होंने अपने पैरोकारों को कभी भी किसी की जान लेने की तरबियत दी, तालीम दी, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि जो नमूना उन्होंने दिया, वसतुल्लाह खान साहब अगर कभी बाइबल का मुतालिया कर लेते तो शायद वो ये बात भी इसमें शामिल कर लेते। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला पतरस का ख़त है। पास्टर प्रवेश साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे लिए पढ़ दीजिएगा 19वीं आयत से कि एक हस्ती जो इस दुनिया में इस वक्त मशले राह इंसानों की बर्बादियों को कामयाबियों और कामरानियों में बदलने की राह, ये जो मौत और जुल्म के रास्ते हैं, इन रास्तों से निकालकर जिंदगी और खिदमत की राह पर ला सकती है, उस हस्ती से आपको मुतारफ करवाना चाहता हूं। यहूदियों ने उसे रद्द किया, अहले इस्लाम उसे ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, मसीही उसे खुदावंद, नजात दहिंदा और शाफी मानते हैं। और इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है, मेरी ये दरख्वास्त होगी पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, कि वो कहाँ से ज़िंदगी देने वाले बनेंगे। पास्टर प्रवेश साहब, पढ़िएगा हमारे लिए 19वीं आयत, दूसरा बाब। यहाँ पर एक नमूना हमें दिया गया है और इस जिंदगी के लिए ताकत भी वो देगा। इस पर बात करते हैं। पास्टर साहब पढ़िएगा। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से, पहला पतरस दूसरा बाब 19वीं आयत, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। गौर से सुनिए पास्टर साहब, साथ ही रखिए इनको। यहां पर यह लिखा है, अगर कोई खुदा के ख्याल से, किसके ख्याल से ये जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, किस तालीम की रोशनी में आप यहां तक पहुंचे हैं। अगर कोई खुदा के ख्याल से, वो तालीम जिसने आपको मर जाने और दूसरों को मार देने तक ले आई है, अगर वो खुदा का ख्याल समझा जा रहा है तो याद रखिए, खुदा के ख्यालात अगर आपने जानने हैं तो वो उसके कलाम में आपको मिलेंगे। और इस वक्त दुनिया की जो जरूरत है वो क्या है, आइए आगे हम देखते हैं। पास्टर साहब पढ़िएगा। बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। ये खुदा को पसंद है। और अगर आप सूरह अल असर पढ़ें तो उसमें नजात के लिए जो 4 शराइत दी गई हैं, उनमें से एक शर्त सब्र करे और सब्र की तलकीन करे। लेकिन ये सब्र जो नहीं करता, उसको आज ये मैं खुदा का खादिम होता हुआ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपको ये सब्र कहां से मिल सकता है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये होगा तो फिर उसका इजहार भी होगा, उसकी अमली सूरत भी नजर
आएगी। और लिखा है ये खुदा को पसंदीदा है। क्यों? इसलिए कि ये खुदा जिसकी हम पूजा करते, मानते, जिसकी पैरवी करते, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो फिर ये कौन सा खुदा है जो हलाकतों की तरफ हमें लेकर जा रहा है? खुदा को ये पसंदीदा है। आगे हम पढ़ते हैं, पास्टर साहब पढ़िएगा। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। फिर आप देखिए खुदा के नजदीक क्या पसंदीदा है कि नेकी आप कर रहे हैं, लेकिन उस नेकी के बदले आप पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो किसको ये बात पसंद है? शायद हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो फितरत है, हमें तो पसंद नहीं, लेकिन जो इस फितरत को बदल कर नया कर सकता है उसको पसंद है। और ये खुदा का बंदा जब लिख रहा है तो अगर आप आगाज में देखें इसके जो दोनों खतूत हैं तो वो जुल्म और ज्यादतियों के पहाड़ जो ढाए जा रहे थे वो हौसला देता है। और तमाम बनी नौ इंसान के लिए, तमाम कौमों के लिए, तमाम कबीलों के लिए अगर इस मौत की राह से निकलने की कोई राह है तो उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जिसके लिए नबी ये कहता है उसका नाम सलामती का शहजादा होगा। और ये उसकी बातें, उसकी तालीम हम तक पहुंच रही है। पास्टर साहब यहां पर फिर लिखा है ये खुदा को पसंदीदा है। आगे पढ़िएगा। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। गौर से सुनिए मेरे मुसलमान बहन भाई, ये कहते हैं कि मसीह पर और अंजील पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। मसीही भी ये कहते हैं कि हमारा ईमान यीशु मसीह पर है, लेकिन यहाँ पर जो नमूना, नक्शे कदम, उसके कदमों पर कदम रख के चलना क्या है कि वो दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, एक राह दिखा गया है तुम्हें। वो एक ऐसी मिसाल बनकर उसने दिखाई। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यशायाह की किताब का 53 चैप्टर है, वहां पर लिखा है कि वो उसको ले गए और वो बेजुबान बर्रे की तरह। और फिर मत्ती की अंजील के 24वें 25वें बाब में, लूका की अंजील के आखिरी अबवाब में, मरकस और यूहन्ना में आप देखिए कि जब उनको सच्चाई बयान करने की वजह से खुदा का पैगाम जो इंसानों को गुनाहों से छुड़ाता, बचाता, आसमान की राह दिखाता, जब उन्होंने मनादी की सच्चाई को खोला तो फिर उन्हें किस तरह दुखों में से गुजरना पड़ा। पास्टर साहब आगे पढ़िएगा ताकि हम इस बात को और ज़्यादा बेहतर तौर से जान सकें। पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अगर कोई राह है इस वक्त तो वो क्या है और उसका तरीका क्या है? पास्टर साहब पढ़िएगा। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। इस वक्त दोनों अतराफ में, पाकिस्तान और इंडिया में, क्या किया जा रहा है? लोग ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप शायद उसको सुन भी ना सके। दोनों अतराफ में, एक तरफ थोड़ा सा कम है, दूसरी तरफ ज्यादा है, लेकिन है जरूर। आगे देखते हैं हम। ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। पास्टर साहब यहाँ पर ये बताइए अब कि ना वो गालियाँ खाकर गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। तो इंसाफ यहाँ पर कहाँ से मिल सकता है? ये असल बात है। जो दुरुस्त रवैया है पास्टर प्रवेश साहब के यहाँ पर, वो किसका सुपुर्द करता था? आज दुनिया के लोग जो कहते हैं मसीह पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, मसीह की तालीम पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, मसीही जो चर्चेज में बैठे हुए हैं, लेकिन माजरत के साथ सब नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनमें ग्रोह हैं और ग्रुप्स बने हुए हैं, और इसको आप डिनोमिनेशंस भी कह सकते हैं, और वो
وہاں پر جو قباحتیں ہیں پاسٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ آپ سینئر ہیں، بہتر جانتے ہیں، تو یہاں پر جو کلام کہہ رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کی، لوگ کس طرف رجوع کریں؟ وہ حکومتوں سے کہہ رہے ہیں یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے، لیکن اصل رویہ جو خدا کا کلام کہتا ہے پاسٹر صاحب تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر دانیال، یہ بالکل آپ نے سچ کہا کہ آج ہم جب قتل و غارت کا بازار گرم دیکھتے ہیں اور سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے، جنازے رکھے ہوئے ہیں اور ایک ہی دعائی ہے کہ ہمیں انصاف ملے، کبھی وہ کسی حکومت سے، کبھی وہ کسی صوبے کی حکومت سے، لیکن آج خدا کا کلام واضح طور پر ہے کہ آج اس دھرتی پر سچ مچ عدالتیں بھی شاید تھک گئی ہیں، شاید عدالتوں میں بھی لوگوں کو نہیں مل رہا، لیکن آج اگر کسی کو انصاف مل سکتا ہے تو وہ ایسے سچے مالک پاک خدا کے پاس ہی آئیں جو ان کی زندگی کا ضامن ہے، جو ان کی زندگیوں کو انصاف دے سکتا ہے اور اس دھرتی پر بھی انہیں تسلی دے سکتا ہے، اور اگر وہ دکھ اٹھا کر اس دھرتی سے اٹھا بھی لیے جائیں تو ان کے لیے آئندہ بھی ایک ہمیشہ کی تسلی اور زندگی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب نے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، اور وسعت اللہ خان صاحب کے کالم سے یہ بات شروع ہوئی، اور وسعت اللہ صاحب اگر جو شو لوگ دیکھتے ہیں ان کے شاگرد اگر دیکھیں سنیں تو میری یہ درخواست ہوگی ان سے بھی کہ یہ کبھی کبھی اگر میرا لگتا ہے پڑھتے تو ضرور ہوں گے، لیکن اس پر بھی کبھی کبھی اگر غور کریں تو مہربانی ہوگی تاکہ لوگ درست سمت جہاں سے مل سکتی ہے اس طرف بھی آ جائیں تاکہ دنیا میں امن اور محبت ہو سکے۔ دونوں ممالک میں کیا ہو رہا ہے آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر میں یہیں سے بات کو جاری رکھوں گا۔ کلپ دیکھتے ہیں، کلپ نمبر 1 ہے ہمارے ترتیب میں، آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے اسمنگلی روڈ پر پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ افسوسناک واقعہ آج صبح پیش آیا کوئٹہ کے علاقے اسمنگلی روڈ پر۔ ڈی ایس پی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، اور اس افسوسناک واقعے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے جبکہ ڈی ایس پی محفوظ رہے۔ فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے اور ڈی ایس پی محفوظ رہے تھے۔ کوئٹہ کے علاقے اسمنگلی روڈ پر پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ سرکار سے تو کئی طریقے کی امیدیں آدمی رکھتا ہے، لیکن سرکار کی بھی خود کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم سے کم سرکشا ویوستھاؤں کو مضبوط کریں۔ اس طریقے کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں کوئی پہلی بار تو ہوئی نہیں، ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی ٹھوس قدم اس کے لیے نہیں اٹھایا گیا۔ آئے دن روز نئے نئے حادثے ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے، تو کم سے کم اس کے لیے کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھائیے جس سے کم اس طریقے کی حرکتیں نہ ہوں۔ کیا شہیدوں کے پریوار کی سنے گی سرکار؟ کیا یہ من میں آئے گا کہ کڑی نندا بہت ہو گئی، اب جوان ہمارے زندہ بچیں؟ پرن ہمیں یہ لینا چاہیے۔ دیکھیں یو پی کے اٹاوا کی رہنے والی گیتا اس وقت مائکے میں تھی جب یہ بے حد دردناک خبر ان تک پہنچی۔ انہیں خبر یہ ملی کہ پلوامہ میں آتنکیوں نے سی آر پی ایف کی اس بس کو اڑا دیا ہے جس میں ان کے پتی رام وکیل ماتھر سفر کر رہے تھے، حالت ان کی بیٹی۔ اس خبر کے بعد سے پورا پریوار بدحواس ہے، پتنی اور بچوں کے آنسو رک نہیں رہے۔ رام وکیل مینپوری کے ونائے پورا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ 2001 میں انہوں نے سی آر پی ایف کو جوائن کیا تھا۔ رام وکیل کے 2 بیٹے راہل اور ساہو اٹاوا کے کیندری ودیالیہ میں پڑھتے ہیں، اسی لیے ان کی پتنی بھی بچوں کے ساتھ ہی اٹاوا میں اپنے مائکے میں رہتی تھی۔ بچوں کے آنسو پوچھتے رشتہ دار رام وکیل کا تیسرا بیٹا انش ابھی محض 4 سال کا ہے، اسے تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ رام وکیل کی پتنی گیتا روتے ہوئے یہ بتاتی ہیں کہ پچھلے رویوار کو ہی ان کے پتی یہ کہہ کر گھر سے گئے تھے کہ اگلے مہینے واپس لوٹ کر وہ مکان بنوائیں گے، پر اب وہ باتیں صرف یادوں میں رہ جائیں گی۔ ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا، دونوں ممالک میں دہشت گردی، تخریب کاری ہو رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلے
کوئٹہ میں اور دیگر بھی بہت سے حملے ہوئے، لوگ مر رہے ہیں۔ دونوں اطراف میں عام لوگ بھی اور جو فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی۔ اور جو دوسرا حصہ تھا اس کے آخر میں یہ تھا کہ یادیں ہی رہ جائیں گی۔ یہ تمام لوگ جو پاکستان میں یا انڈیا میں اب یادیں بن گئے ہیں، یہ جیتے جاگتے لوگ، زندگی خدا کی نعمت، لیکن دونوں اطراف میں جن کے عزیز چلے جاتے ہیں، آپ ان کی بیوہ ہوں، ان سے پوچھ کے دیکھیے، ان کے بچے ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ اپنے تاثرات بیان کر سکیں، کچھ تو بہت چھوٹے ہیں۔ دونوں اطراف کی بات کر رہے ہیں اور بڑے بوجھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دشمنی کیوں؟ دوستی کیوں نہیں؟ بس یادیں رہ جائیں گی۔ موت لانے والے عناصر دونوں اطراف میں۔ کون سی کوکھ ہے جہاں سے اس کا جنم ہے؟ کہاں یہ پروان چڑھتے ہیں؟ کون ہے جو ان کی ڈوریاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے؟ دانش کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جڑوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے کس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں بڑی محبت کے ساتھ ماضی میں جو طرز حکومت اور آج تک دنیا میں جو طرز حکومت ہے، عام لوگ چونکہ ان کو کچھ کم پتہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا مختصراً بتاؤں گا کہ دنیا میں 3 طرح کی بادشاہتیں پائی جاتی تھیں اور آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ بادشاہتیں حکومت کرتی تھی، بادشاہ، اس کا خاندان، پھر اس کی نسلیں، پھر اشرافیہ کی حکومت، جو امیر لوگ، اونچا طبقہ ہوتا تھا، وہ حکومت کرتے تھے، اس کے ساتھ جمہوری حکومتیں آتی تھیں۔ اب ان میں جو بڑا نقطہ سب میں پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جو رعایا ہے ان کے جان و مال کی حفاظت ہوگی، ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو باہم پہنچائی جائیں گی، امن اور سکون سے وہ زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ہمیشہ سے اس کا الٹ ہوتا آیا ہے۔ قدیم تہذیبوں کو اگر آپ دیکھیں تو 3 طرح کے لوگ وہاں پر ہوتے تھے، جن میں سے ایک آزاد شہری کہلائے جاتے تھے، ایک طبقہ جو زیادہ ہونے کے باوجود غلام کہلاتا تھا، تیسرا وہ طبقہ ہوتا تھا جو تجارت کے تعلق سلسلے میں ان ممالک میں رہتے تھے۔ اب جو تجارت والے تھے، تاجر برادری، وہ آتے تھے، کام کرتے تھے، ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، حکومتی فیصلوں میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ جو غلام تعداد میں زیادہ تھے لیکن وہ محکوم، ان کا بھی کوئی کسی طرح سے حکومتی معاملات میں کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ ان کے جو مسائل تھے، ان کی جو پرابلمز تھیں، جو وہ فیس کرتے تھے، کچھ نہیں تھا۔ فیصلے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ اب ان میں جو زیادہ تر ہم نے تاریخ میں دیکھا وہ یہی ہے اور آج تک بھی ہے کہ عوام کے نام پر، عوام کی حفاظت کے نام پر لوگ ہیں لیکن عوام کی حفاظت نہیں ہے۔
आवाम की भलाई और बेहतरी के लिए बड़े बड़े एजेंडे हुकूमतों के पास हैं, पार्टियों के पास हैं कि आवाम के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आवाम के पास ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, और लोग जो हैं वो कुछ इससे तसल्ली भी पाएँ और कुछ आगाही भी पाएँ। रोटी, कपड़ा और मकान किसके पास है? इंडिया और पाकिस्तान में अगर देखें, जंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं आज बड़ी हलीमी के साथ जो हकीकत है, अभी मैं थोड़ी सी इस पर भी बात कर लूँ, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। ये 3 तबके जो होते थे, इनमें से जो ऊंचा तबका था हमेशा वो तसल्लत जमाता था, और जिन हकूक़ की बात वो आवाम से करते थे वही हकूक़ जो उनसे इस तरह से छीन लेते थे कि हकूक़ के नाम पर बहुत बड़े मंसूबे तो थे लेकिन लोग उन हकूक़ से महरूम ही थे। और अभी मैं इस तरफ भी आऊँगा कि फिर इसका हल क्या है। अब मैं यहाँ पर, चूँकि वक्त हमारे पास थोड़ा होता है, लेकिन ये शो का जो हिस्सा मैं कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है आज के सब कॉन्टिनेंट के लोग थोड़े से बाशऊर हों और वो इस बात को जानें, इस तरफ आएँ कि हमें उन लोगों का इंतखाब करना है, उस तरफ अपने लीडर्स के लिए अपनी जो राय है उसको लीडर्स तक पहुंचाना है कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें फासले नहीं चाहिए, हमें मलाप चाहिए, हमें हमारे जो मसाइल हैं रोज़मर्रा के वो चाहिए, हमें हमारे बच्चों की मौत नहीं उनकी ज़िंदगी चाहिए। तो इस तरफ हमें लेकर आना पड़ेगा। अब जब इन बातों को हम सोचते हैं, देखते हैं, तो फिर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं आपके सामने, ये जो मैंने मुख्तसर बयान किया है, इस पर और भी बात हो सकती है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं और जो आप पर हुकूमत कर रहे हैं, खुदारा अब आपको जागना पड़ेगा दोनों तरफ से। जंग नहीं अमन, दुश्मनी नहीं दोस्ती, और इसके लिए कोई बहुत बड़े इक़दाम की ज़रूरत नहीं है, फ़क्त इतना कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए, अकायद का एहतराम किया जाए, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स का एहतराम किया जाए, और अपने अपने ममालिक में जो असल मसाइल हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता दूं कि दोनों अतराफ में जो जिस्म फरोशी करके पेट की आग बुझाने वाले लोग हैं उनके बारे में कितनी संजीदगी पाई जाती है। जो दोनों अतराफ में गुर्बत से भी नीचे, मैं नाम नहीं लूँगा, दोनों अतराफ में ऐसे इलाके हैं कि बड़े बड़े लीडर्स के जानवर बेहतरीन खुराक खाते हैं, लेकिन दोनों अतराफ में अगर आप देखें तो जो इलाके जहां पर खुराक की कमी है, दोनों अतराफ में लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है, खुराक नहीं है। अब उस तरफ तो ध्यान नहीं जाता। गुर्बत, अद्वियात लोगों को बर वक्त नहीं मिलती, और अगर कहीं पहुंच भी जाते हैं तो इतनी महंगी हैं कि लोग खरीद नहीं सकते। इस तरफ किसने ध्यान दिया है? नस्लों की नस्लें अनपढ़ और जहालत में, उस तरफ कितने लीडर्स ने ध्यान दिया है कि हमें यह करना चाहिए। लोग कानून से बाला, चूँकि उनके पास हैसियत है, उनके पास इख्तियार है, पैसा है, लेकिन जो जिनके पास हैसियत, पैसा नहीं है, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है। कितने हैं लीडर्स जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर यह फैसला किया हो कि हम इन शोबों की तरफ भी ध्यान देंगे, और इसके साथ ये तो मैंने चंद बातें की हैं, और भी बहुत सी बातें कर सकते हैं जो हमें हकीकत का आईना दिखा रहा है। हर रोज़ जिस्म फरोशी करके पेट की आग बुझाने वालों के लिए क्या एजेंडा है? क्या वो भी हंगामी तौर पर आप करेंगे? जो बच्चे और ख़ानदान
गुर्बत की लकीर से नीचे एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, मौत का शिकार हो रहे हैं, साफ पानी नहीं है, उनके लिए हंगामी इक़दामात दोनों तरफ में किसी ने किए हैं। नाइंसाफ़ी का शिकार, जुल्म और ज़्यादतियों का शिकार लोग जो हैं, क्या आपने हंगामी इक़दामात उनके लिए किए हैं? जंग मसलों का हल नहीं है। अब मैं पास्टर परवेज़ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे लिए, मैं दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं आज, कि एक तो इंसानी खसलत फितरत बिगड़ी हुई, और फिर उसका इंसानों के साथ सलूक जो हमें नज़र आ रहा है, और फिर हम देखेंगे कि उससे भी निकलने की राह क्या है। पास्टर परवेज़ साहब ज़बूर 53 हमारे लिए पढ़िएगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये सारी बातें हैं, लेकिन क्यों हैं और फिर उसका हल क्या है। पास्टर परवेज़ साहब हमारे लिए पढ़िएगा ज़बूर 53 और उसकी 2 आयत से 3 आयत तक। यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि इंसान इस हद तक कैसे पहुँच चुके हैं। पास्टर साहब हमारे लिए ये पढ़िएगा ज़रा। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए हैं, वो बहम निजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। प्यारे नाजरीन, पास्टर परवेज़ साहब को साथ ही रखिए मेरे। अब यहाँ पर आपके सामने वो निगाह, हम तो एक दूसरे को देखते हैं, लीडर्स की तरफ देखते हैं, रहनुमाओं की तरफ देखते हैं, जो हमारे सियासी हैं, मजहबी हैं, समाजी हैं, उनकी आदतों की तरफ देखते हैं। लेकिन जब खुदा निगाह करता है तो ज़बूर नवीस जब लिखता है तो वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को, जो इंसानों की हालतें हैं, उनको खुदा ज़ाहिर करता है ताकि हम देख सकें कि इंसानों के बुरे अमाल, उनकी वजह, उनकी जड़ें कहाँ हैं। इंसानों के बनाए हुए बुरे असूल और बुरे कवानीन और बुरी तालीमात उनको बुरे अमाल तक ले आते हैं। और यहाँ पर लिखा है, खुदा ने आसमान से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद। हम सोचते हैं कि हमारे पास दानिशमंद लोग हैं। अब खुदा कह रहा है कि वो देख रहा है कि कोई दानिशमंद हो। वो क्या करेगा? जो दानिशमंद होगा खुदा का तालिब होगा, ताकि खुदा उनका जो अदराक, उनकी जो अक्लें हल ढूंढने से कासिर हैं, खुदा उनकी मदद करे। तो यहां पर लिखा है खुदा आसमान से देख रहा है। प्यारे बहनों और भाइयों, लीडर्स के लिए भी बात कर रहा हूं। बनी आदम का निगाह की कि देखे कि क्या कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए हैं, वो बाहम निजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। अब यहां पर खुदा इंसानी सरिश्त की बात कर रहा है, जिस तरफ आज हमारा ध्यान कम ही जा रहा है। अब जब इंसान की सरिश्त, उसके अमाल, उसका तर्ज़े हयात ऐसा बिगड़ चुका है कि उससे हमारे लिए तनज़ली की राहें निकल रही हैं, उससे बर्बादियों की राहें निकल रही हैं, उससे जुल्म की राहें निकल रही हैं, और इंसानों पर इस तरह से जुल्म ढा रहे हैं। वो समझते हैं कि हम दानिशमंद हैं, लेकिन खुदा यहाँ पर यह कह रहा है कि एक भी नहीं है, कोई नेकोकार नहीं है। ये नेकियां जो खुदा का मनसूबा था, भलाई जो खुदा का मनसूबा था, इंसानों की सरिश्त ने उसको कबूल नहीं किया, उनको रद्द किया है। और लिखा है कि एक भी नेकोकार नहीं है। पास्टर परवेज़ साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदा ये कह रहा है, खुदा असल सूरत हाल दिखा रहा है कि तुम अपनी वो दानिश जो तारीकी की दानिश है, उसमें नूर ने जो तुम्हारे अंदर ज़मीर रखा था, तुमने उसको उस तारीकी के हवाले कर दिया है। ये बताइए कि लोग आज इस बात को समझें और किस तरह से खुदा के तालिब हों, इस पर मुख्तसर बात कीजिएगा।
یہ بالکل اس آیت کو آپ نے درست طریقے سے بیان کیا، اور یہاں پر خدا کے کلام کی میں آیت پڑھتا ہوں، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ اور یہ بالکل حق بجانب ہے کہ لوگ تاریکی میں اتنے مہر، اتنے مست ہو گئے ہیں، اور وہ کیوں نہیں یسوع جو دنیا کا نور ہے اور اس زندگی بخش کلام کو بھی نور اور روشنی کہا گیا ہے، کیونکہ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جب یہ آئینہ دکھایا جاتا ہے تو اس میں ہمارے خد و خال، ہماری زندگی کا سارا عکس جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا عکس ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور وہ عکس کیا ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں۔ پاسٹر صاحب ہمارے لیے رومیو 3 باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہمارے لیے پڑھ دیجئے، اور آپ تمام پوری دنیا کے لوگ اور خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھیے کہ یہ جو فطرت ہے پھر اس کا اظہار، یہ جو بد خصلتی ہے، یہ جو بگڑی ہوئی سرشت ہے، اس کا اظہار، اور پھر آپ اپنے چوگرد اور اپنے اندر جھانکیے گا۔ رومیو 3 باب پاسٹر صاحب 11ویں آیت سے 18ویں تک ہمارے لیے پڑھیے گا۔ پاسٹر پرویز صاحب پڑھیں گے۔ کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ پاسٹر صاحب یہ دوبارہ پڑھیے گا۔ سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پاسٹر صاحب 18ویں آیت تک پڑھ دیجئے جلدی سے۔ انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے ناواقف ہوئے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے۔ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھ رہا اور اپنے چوگرد دیکھیے، تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ ہے وہ صفات۔ کوئی سمجھدار نہیں ہے، سب گمراہ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا تم گمراہ ہو اس لیے کہ تم کتاب مقدس کو نہ سمجھتے ہو اور نہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہو۔ تم اسے پڑھتے تو ہو، تم اسے سنتے تو ہو، لیکن ان کا گلا کھلی ہوئی قبر، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، جب وہ بولتے ہیں تو زندگی نہیں موت نکلتی ہے۔ اور آج میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ مختلف چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لوگوں کو سنتے ہیں تو خدا تحمل کرتا ہے
क्योंकि वो हलाकत नहीं जिंदगी चाहता है। यहां पर लिखा है उनके होंठों में सांपों का जहर है, जब वो बोलते हैं तो वो जहर सराइत करता है, और जहर जब सराइत करता है तो वो मौत को पैदा करता है। और अगर आज आप कहीं भी धोखा खा चुके हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, जब आप बातें सुनते, तालीमात को पाते, तो क्या जिंदगी या हमारे शोगिर्द, लिखा है उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, बिगड़ चुका है। कड़वाहट, कड़वापन, अंदर कड़वाहट है, मिठास, मोहब्बत नहीं है। लानत है, बरकत नहीं है। दुनिया की हालत के जिम्मेदार उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह तेजी से जाते ताकि खून बहाया जाए। तुम खून ना करना, यहोवा खुदा, एलोहीम, एदोनाई, उसका ये पैगाम। और लिखा है उनकी राहों में तबाही और बदहाली है। ये जुबान से शायद कहेंगे बरकत, लेकिन इनके फल तबाही। अगर आप देखें कौन है जहां जहां तबाही जा रही है, तो कलाम खुदा की रोशनी में देख लीजिए। और बदहाली है, लोगों के लिए बदहाली पैदा हो रही है। लोग मायूस, नाउमीद, हर जगह पर उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम खुदा के नाम पर ये कर रहे हैं। वो जुबान से तो कुछ कहते हैं, लेकिन बातन में कड़वाहट है और बरकत नहीं है। वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है। खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। खुदा का बंदा सुलेमान ये लिखता है। अब ये जो सलामती की राह है, इस तरफ कैसे आया जाए? खुदा का बंदा, एक ही उम्मीद है। खुदा का बंदा यसाया कहता है उसका नाम सलामती का शहजादा होगा। और सूरह अल हदीद उसकी 27वीं आयत, दूसरा क्रंथियों का खत 5वां बाब और उसकी 17 आयत, ये सलामती, अमन कैसे आ सकता है? उसका नाम सलामती का शहजादा होगा। और जब उन्होंने तालीम दी, पास्टर प्रवेश साहब 5 मिनट हमारे पास हैं, एक ही हस्ती हमें नजर आती है पूरी दुनिया में, आप जरूर मुतालिया कीजिए। उनका नाम सलामती का शहजादा होगा। और उन्होंने ये कहा था, इब्ने आदम, ये उनका एक टाइटल है, खिदमत लेने नहीं पास्टर प्रवेश साहब, बल्कि खिदमत जी करने आया है। तो आज आप पूरी दुनिया के लोग जो देख रहे हैं, हमारा मौजू है, उस पर हम अगले हफ्ते बात करेंगे। पहले हमने आज का ये जो ख़ास हमने टॉपिक जो इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल है, कलाम खुदा से उसका हल आपके सामने रखा है। पास्टर साहब, आप एक मुद्दत से खिदमत में हैं, जो बातें हमने की हैं उनको मुख्तसर तौर पर आप बताइए और इन पर इजहार ख्याल कीजिए। फिर यीशु मसीह ने फरमाया कि वो खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। क्या ये आज आपको नज़र आता है कहीं लीडरशिप में, या इसका फुकदान हो चुका है? जी, ये बिल्कुल हकीकत है कि इसका फुकदान हो चुका है। यूं लगता है कि लोग मुनज्जिए आलमीन के उस नमूना को भूल गए हैं, जब उन्होंने अपने शागिर्दों के पांव धोकर और कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है। और ये है खादमियत की वो खूबसूरत तस्वीर कि वो हाकम बनने के लिए नहीं, इसीलिए उसने फरमाया कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो सबका खादम बने। और ये जो सर्वेंटहुड है, खादमाना तबीयत है, आज हम देखते हैं कि मजहबी दुनिया में भी, चाहे वो किसी मजहब के लोग हैं, और इसी तरह से आज हम देखते हैं कि हमारे बड़े सगीर में भी जो लोग बड़ी पस्तियों से
हुक्मरानी तक पहुंचे, वो भूल गए कि खुदा ने उन्हें कहां से उठाया और वो किस मकसद के लिए ये मनसब उन्हें दिया गया है। बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर है डॉक्टर दानियाल कि जब आस्तर मलका बादशाह के महल तक पहुंची, लेकिन महल तक पहुंचने के बाद जब उसकी कौम पर एक बड़ा बुरा वक्त आ गया, तो आस्तर की किताब में लिखा है कि मर्दकी ने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम उसे भेजा। उसने कहा कि तू आस्तर, तू भूल ना जाना कि तू इसी वक्त के लिए इस जगह पर पहुंची है ताकि तू अपनी कौम की आवाज बुलंद कर सके। आज मेरी दुआ ये है और इस टेलीविजन की वसातत से ये है, काश के ऐवानों में बैठे हुए लोग या मजहबी लिहाज से जो भी उन्हें, चाहे वो किसी मजहब के हों, फिरके के हों, इस्लाम या मसीहत, जुडाइज्म या हिंदू मत में, वो जाने कि किस काम के लिए ये नुमाइंदे चुने गए, किस काम के लिए इन्हें हाकमाना पोजीशन दी गई ताकि वो अपने रोल को अदा करें और मसीह यीशु के खूबसूरत नक्शे कदम पर जो उसने नमूना दिया है, उसके नक्श पर चलकर, उसके नमूने पर चलकर वैसे बन सके। बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब ने वाज़े कर दिया कि कौन आपको अमन, मोहब्बत, सुलह, इंसानों से प्यार और खुदा से प्यार तक आपकी फितरत को बदल सकता है। उस हस्ती का नाम ना कब्र में है, ना बरज़ख में है, जिंदा हैं। और आज भी हर एक इंसान जो पूरी दुनिया में है, उसको मोहब्बत करने वाला, अमन और शांति देकर अमन और शांति मोहब्बत बांटने वाला बना सकते हैं, उसकी बातनी फितरत को बदलकर। पास्टर परवेज साहब, मैं बड़ी हलीमी के साथ 30 सेकंड आपको दूंगा, दुआ कीजिए ताकि ये कलाम 100 गुना फल लाए। खुदाए बुजुर्ग बरतर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आप जो इंसाफ पसंद और आलम बाला पर तख्त नशी हैं, आज हम सब इंसानों पर निगाह कीजिए और हम दुआ करते हैं अपने सामाईन के लिए जो जुल्म और सितम सहते सहते थक गए, हार गए हैं। आज हम उन सब के लिए आपकी कमाल तसल्ली और तशफ़ी मांगते हैं, और ये सारा टेररिज्म जिसकी वजह से घराने तबाह हैं, आज उन सब के लिए भी तसल्ली मांगते। और आज हम मिलकर मुल्तजी हैं कि हमारे हिंदो पाक में ऐसे हाकम बरपा हों जो अपनी जिम्मेदारियों को एक बड़े एहसास के साथ अंजाम देने के लिए तैयार हों। और हम दुआ करते हैं कि यीशु अल मसीह जो कौमों की नजात और जिंदा खुदावंद और मुनज्जी है, उसकी सच्ची पैरवी में अपनी जिंदगी को वो दे सकें और आपके पास आकर हमेशा की जिंदगी पाएं। यीशु अल मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। पास्टर परवेज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शरीक होते हैं। अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ होंगे। नाजरीन, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग दुआएं करते हैं, अपने मशवराजात देते हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। कलाम खुदा में लिखा है, जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। ये हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हाल में और मुस्तकबिल में खुदा की बरकत, अमन, सलामती, यस्सु वसीला है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।